birds, insects, and human beings. जो अच्छा human beings. ठीक है. The chromosomes. यम छ आसान chromosomes. Their number varies. ये vary करता है, varies from species to species. ठीक है. The chromosomes are of two types. ये chromosomes दो किस्म के होते हैं. Chromosomes are of two types. एक चीज बना autosomes and दूसरा sex chromosome. Sex chromosome. The sex chromosome means which determines the sex. Which determines the sex. What does it mean which determines the sex? जो डिस्टिंग्विश करेगा मेल और फीमेल. मेल और फीमेल कैसे ये आइडेंटिफाई करते हैं. सबसे पहले ये देखा गया एक फ्लाई है, वी कॉल इट ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर. ड्रोसोफिला is a fly. Drosophila melanogaster, having 4 sets of chromosomes. It is a fly. Having 4 sets या 4 pairs लिखना. 4 pairs होते हैं. 4 pairs of chromosomes. The scientist was McLong, who first of all discovered that there are autosomes and sex chromosomes. इसके पास होता है नंबर 1 rod shaped chromosome. Rod shaped chromosome. ये एक पेयर होता है. Rod means like this. ये हो गया एक पेयर. दूसरा होता है कामा शेप्ड. ये भी एक पेयर होता है ऐसे. तीसरा होता है डॉट शेप्ड. ये होता है डॉट. ये भी पेयर होता है. ऐसे डॉट्स होते हैं. ठीक है. चौथा होता है हुक शेप्ड. ये होता है हुक लाइक दिस. फिर उसने देखा है इनमें से कौन सा ऐसा है जिससे डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स होती है. रॉड शेप्ड को यानी 1 chromosome, 1 pair, 1 chromosome is responsible. For the determination of sex. Rest of the chromosomes are called autosomes. इस तरह से फिर रिसर्च जारी रही. फिर पता चला we are homogametic and heterogametic. Human beings, for example, human beings
and other animals also have two types of organisms. Number one, homogamitic, and दूसरा heterogamitic. Homo means similar. For example, XX. Hetero means different. Means X, Y. It has been observed that male and female, we human beings are heterogamitic, having two sets of chromosomes, I shall say the set. That is, one set we receive from mother, or we can say haploid. N means haploid. N number of cells or 23 chromosomes we receive from mother, and plus N haploid, ये भी haploid होता है, also contains 23 chromosomes. If we consider these chromosomes from father, if we consider these chromosomes from mother is homogamic, father is heterogamic. तो थोड़ा फिक्र क्या हो, ये विषय असा XY, ये विषय असा XY, ये विषय असा XX. So male is also heterogamic, female is also homogamic. So XX chromosome, if this X and this X will combine, the zygote will form. It will be a female baby. Again बनेगी female. If Y will combine with the X and Y, so who is responsible for producing boys and for producing girls? It is male. That is why Y is considered the sex determinant. Y is considered the sex determinant. अब हम इस पर लिख सकते हैं, अब हम इस पर दिखाएंगे कि किस तरह से हम ह्यूमन बीइंग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन होती है. फादर क्या ऐसे दिखाना है, इसको हमने क्रॉस किया मदर, लेकिन अगर एग्जाम में हम फादर मदर लिखेंगे तो मार्क्स आएगा 0. मार्क्स आएगा 0. यहाँ लिखा फादर, उधर क्या लिखेंगे, फिर ये रिश्ता क्या बनेगा, ये रिश्ता नहीं बन सकता. समझ आया? इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, मेल, यहाँ क्या लिखेंगे, फीमेल. समझ आया? अब इसके गैमेट्स क्या है, 44 प्लस XY, 44 प्लस XY, ये क्या होगा, फीमेल. 44 प्लस क्या लिखेंगे, XX. वेरी गुड. ठीक है, ये 44 हमें सेम है. ठीक है, इसीलिए इनको बोलते हैं ऑटोसोम्स. क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स. दीज आर ऑल इन पेयर्स. अब ये Y जो है ये डिफरेंट है, अब ये X, अगर ये X निकला, ये Y निकला, यहाँ से ये बन गया XY. इशू क्या होगा, मेल बेबी.
ठीक है। अब अगर ये एक्स निकला, अगर ये एक्स निकला और ये एक्स आया यहां से, ये बन गया एक्स एक्स, ये बनेगा फीमेल बेबी, फीमेल बेबी। So far as Holy Quran is concerned, Allah has given us this topic in different surahs. Yeah, I have created you in races, in tribes, in different sexes, X and Y. ये एमरोलॉजी पूरी कुरान में अल्लाह ताला खुद कहता है। अब हमें डिस्कवर हुआ आफ्टर जेनेटिक्स, जब जेनेटिक्स वजूद में आ गई, एडवांस्ड साइंस। आज से 200 साल पहले, 150 साल पहले इसका कंसेप्ट था ही नहीं। बहुत सारी औरतों को, बहुत सारी लड़कियों को जलाया गया, मारा गया। क्यों? क्योंकि इससे सिर्फ लड़कियां पैदा होती हैं। लड़कियां पैदा होना, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, it is the male cell which contains Y. So Y is called sex determinant. इसको हम कहते हैं, ये है सेक्स डिटरमिनेंट। ये वर्ड लगता है बहुत बड़ा है जब हम बोलते हैं सेक्स। सेक्स मीन्स आइडेंटिफिकेशन, डिस्टिंग्विश ऑफ मेल एंड फीमेल। तो इस तरह से Y is the sex determinant chromosome. This is called sex determination in human beings. तो इस तरह से आप बर्ड्स में, उनमें उल्टा होता है। यहाँ तक समझ आया? आप बर्ड्स में कैसा होता है? उनमें ZW, इसमें मेल होता है होमोगेमिट, मेल होता है होमोगेमिट। ये फीमेल होती है हेटेरोगेमिट, हेटेरोगेमिट। So these are autosomes, Z similar। इसमें से डिफरेंट कौन सा है? W। W क्या बनेगा फिर? Sex determinant. So it is called determinant. In some insects, ये तो बर्ड्स में है, किसी जगह हम इस्तेमाल करते हैं XX XO, XX XO। ये सिमिलर बनेगा, ये बनेगा डिटरमिनेंट। अब इन इंसेक्ट्स में, फॉर एग्जांपल एपस इंडिका, एपस इंडिका, या हम कहेंगे हनी बी, हनी बी। हनी बी लेज 2 टाइप्स ऑफ एग्स। इसमें 2 किस्म के एग्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ एग्स। एक होता है फर्टिलाइज्ड, दूसरा होता है अनफर्टिलाइज्ड। इनमें होती है मोस्टली पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। इनमें भी इंसेक्ट्स में पार्थेनोजेनेसिस होती है, आदों में पार्थेनोजेनेसिस। इनमें भी XO मेथड, उसको बोलते हैं XO मेथड ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। लेकिन हनी बी में एग्स 2 किस्म के होते हैं। फर्टिलाइज्ड से निकलता है वर्कर, फर्टिलाइज्ड एग जो होता है इससे निकलता है वर्कर, और अनफर्टिलाइज्ड से निकलता है ड्रोन, उससे निकलता है ड्रोन मेल। ये तो हमने पिछली बार पढ़ा है ना, उसमें प्रोडक्शन में। तो इस तरह से XX लिखो, डिफरेंट मेथड, XX XO मेथड, XX XY मेथड, ZW मेथड। बर्ड्स, फ्रॉग्स एक्स्ट्रा, इनमें होता है बाज़ाब्ता तौर डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम्स जो इंडिकेट करता है, जो एक्सप्रेस करता है सेक्स डिटरमिनेशन एनिमल्स, सेक्स डिटरमिनेशन in animals. Nowadays
we misuse this sex determination. इसको मिसयूज किया जाता है. मिसयूज कैसे करते हैं? In order to know the sex of the baby. If they found there is female, it is feticide. Now it has been banned. It is crime. It is murder. लेकिन पढ़ना जरूरी है कि क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, कि सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होती है. ना समझाया? ये इतना ही है. ठीक है? कोई सवाल? थैंक यू. करेगा बात.